Morning, Good sir. morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे सर हैं आज आप हम लोग? स्कूल नहीं गए सर। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए बेटा, प्लीज 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 से व्हाट डू यू वांट टू से। वेरी गुड मॉर्निंग तुलिका, वेरी गुड मॉर्निंग शमीर, अमन, त्रिशा, कृष्ण, किशन, सॉरी किशन, गौरव, आयुष, लकी, एवरीबडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एंड एम आई ऑडिबल? ऑडिबल बेटा? Yes sir. Yes, You sir. are Yes sir. Thank you, thank you. And okay, say me one thing, as this is the very first class. Tulika, please take a screenshot, not now, after 20 minutes, when the strength is maximum, and share it to my number also. Do you have my number, beta? No sir, I don't have your number. Okay, please do write. Anybody can write this number 808339417. This is only WhatsApp number, beta. This is not calling number, but you can. morning, sir. Very good morning. Very Okay good morning, Satyam. And please share the screenshot to me also, but do not take screenshot just beginning of the class. Take in the middle of the class so that the strength should be seen maximum. Okay, so that I can. okay sir. Okay, beta. Please do it. And not now. Take time. See. Very good morning, all of you. Okay, the very first class is mine. And usually what actually happen with you all, that when you start your class, the very first class, usually your class teacher appears to be seen in the classroom, and you really like him, you really trust him, and your class teacher becomes the guardian of the whole class. But here, fortunately, I am getting that opportunity. Okay, because I am coming in the very first class, and I start the class in the morning, and as just before your class there is a class, so I do not take more time to enter in your class. But suppose if I become late for 1 2 minutes, so it's not a problem. We are in online and many more things are dependent on network and many more things are there, but I usually try to come on absolutely on the time. Okay, and you too require to come on that time only. Clear? So the very first period of mine, can you give some feedback? कैसा लग रहा है? How are you feeling and how the first class is going on? Tell me बेटा. मजा आ रहा है मेरे क्लास में? Yes sir. Yes sir. हाँ, आशीष, थैंक यू, एंड एवरीबडी. Yes sir. हाँ, तो आप लोगों को अगर मजा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है. मुझे अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट क्लास में मेरा है, तो आप बच्चे एंजॉय करें. चलिए, दैट इज वेरी गुड. माई स्क्रीन इज प्रेजेंटेड बेटा. And Yes yesterday, sir. Yes sir. yesterday we have talking about 13a, exercise 13a. In the congruency we have solving some questions. So now it's your time, it's your turn, and do ask question whatever you are getting problem. बोलिए बेटा, जिसमें भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज. अगर आपने इसको बनाया है तो आप क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार हैं. और कभी भी ये मत सोचिएगा कि जब मैं 13A बता रहा हूं और आपको 13A के पहले कोई डाउट हो तो आप नहीं पूछ सकते हैं. बिल्कुल नहीं, मेरे क्लास में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप एग्जाम्पल 10 भी पूछ सकते हैं. आपको अगर डेफिनेशन कोई पता नहीं है आप पूछ सकते हैं. आपको अगर अभी भी कोई क्राइटेरिया में दिक्कत है, एंगल साइड या साइड एंगल साइड या RHS या CPCT का फुल फॉर्म या और भी कोई दिक्कत है, तो बिल्कुल आप अलाउड हैं. और फर्स्ट क्लास में हूँ मैं, तो मतलब आप बिहेव करो कि हम भाई आपके क्लास टीचर ही हैं अभी. तो आपको जो लगे, जिस क्लास का भी कोई दिक्कत हो आप उनसे बात कर सकते हैं. चलिए, तो मुझे बताइए तुलिका, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? बोलिए. No sir. No sir. चलिए, No. तो आज आप लोग ये बताओ, कॉन्ग्रुएंसी हमें करना है. कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी हमने की है. हमने एंगल, साइड एंगल, 4 हमने क्राइटेरिया भी पढ़ा है. तो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन जब वो बनाते हैं ना, तो उनका क्वेश्चन तुरंत मैं व्हाट्सएप पे मंगवा लेता हूं और चेक भी कर देता हूं आपके कॉपी स्क्रीन पे लेके. समझ गए? तो मैं आप बच्चों को एक
एक क्वेश्चन देता हूं और देखना चाहता हूं कि क्या बच्चे इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो मैं देखना चाहता हूं कि आपका थोड़ा सा ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग फटाफट कोशिश करो बनाने का, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को बना के Yes, अभी sir. व्हाट्सएप भी मैंने नंबर भेजा है, उस पर आप शेयर भी कर सकते हो। और देखता हूं मैं कि आप लोग सही बना रहे हो गलत बना रहे हो, तो मैं इसको तुरंत सॉल्व करूं, क्योंकि आपके पास डाउट नहीं और ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में रीड करता हूं, तब तक आप लोग बनाना स्टार्ट करो। PQR अपनी अपनी बुक जरूर और कॉपी जरूर खोल के रखिएगा, कभी भी मेरे द्वारा पूछा जा सकता है कि ओपन कीजिए और कॉपी दिखाइए, तो बेटा तैयार रहा कीजिए। चलिए क्वेश्चन है, PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब दो साइड जिसके इक्वल हों, और यहाँ वो दोनों नाम दिया हुआ है PQ एंड PR। साथ में ये भी दिया हुआ है S इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस QR। और हमें जो है बोल रहा है PQS और APRS ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल PRS क्या कॉन्ग्रुएंट है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर है तो सॉल्व करके दीजिए, फटाफट बनाइए जल्दी। जो भी बना डन तो भेज दीजिए। फिर किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं बेटा, भेज दीजिए, मैं पिक्चर देखूं और उस पिक्चर को तुरंत आपके लिए ले आऊं। हाँ जी बोलिए। बोलिए बेटा। जो बच्चे मुझे भेज दिए हैं वो भेज देने के बाद मुझे एक बार बोल देंगे कि सर मैंने भेज दिया है। Sir, page number. क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा ये। Sir, page number. पेज नंबर, एक मिनट बेटा मैं देख रहा हूँ, ये आपका 224, sir. 224 सर। 222 है बेटा, ये तो 222 दिख रहा है यहाँ पे, देखिए है ना। Okay, sir. भेजिए फटाफट भेजिए। तो वेरी गुड अटेम्प्ट, अच्छा आप लोग ले रहे। एक बच्चे का तो लग रहा है आ गया मेरे पास, तो चलिए हम उसका देख लेते हैं। चलिए दिस इज गुड, या देखते हैं हम इसके क्वेश्चन को। इनका आया है ना, ये आया है, ये नहीं, दिस इज नॉट। अभी आया था, किसका है, समीर नहीं, अमन राज का आया है। अच्छा अमन राज का आया है, देख लेते हैं बेटा। तो आपने दो पार्ट में क्यों भेजा है बेटा, ये तो गड़बड़ हो गया बेटा। दो पार्ट में नहीं भेजिए, एक पार्ट में भेजिए, क्योंकि एक ही बार ना मैं उसको टाइप कर वो कॉपी पेस्ट करूंगा। दो पार्ट में भेजने का मतलब हुआ कि फिर गड़बड़ हो जाएगा, मेरे को पूरा चाहिए ना। ये रुक जाइए, आपके दूसरे पार्ट को भी मैं ले आता हूँ, लेकिन अब से ये गलती ना करें। और दोनों डिफरेंट, पेन का कलर डिफरेंट है बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोग कैसे बनाते हो, पेन का कलर जो है आपका डिफरेंट है। Sir, I have also sent it. ओके वेट अ मिनट बेटा। देखिए ये अगर आप इस तरह का क्वेश्चन बना के भेजेंगे तो क्वेश्चन का नंबर और क्वेश्चन के अंदर ये डबल पेन आप लोग क्या अभी यहाँ पे घर पे भी इस तरह से तुरंत आप यूज कर रहे हैं डिफरेंट का। चलिए और देखिए, भेज दिए। ठीक है एक मिनट, पहले इस क्वेश्चन को आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या,
Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखिए, पी क्यू आर जब आप ऐसे लिखते हैं ना तो पी क्यू आर के आगे आप ट्रायंगल का साइन जरूर दें। इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ये काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है, दोनों में आपने लाइन खींचा है। एंड नहीं लिखा कीजिए आप, एंड पूरा लिखिए। मिड पॉइंट एस इज द, अच्छा एस लिखा है तो एस इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस क्यू आर। यहाँ पे एस आपका छूट गया है, मैं लिख देता हूँ। मिड पॉइंट का मतलब हुआ ये दोनों भी इक्वल है, ये भी लाइन खींचिए। और ये दोनों ही ट्रायंगल में एक कॉमन पार्ट है, तो ये दो अलग अलग ट्रायंगल कंसीडर करके हम लोग साइड 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 से दोनों सर ट्रायंगल आपका को, नंबर ग्रुप में है क्या? बिल्कुल होगा बेटा, 7B में होना चाहिए, मुझे लगता है जरूर होना चाहिए। लेकिन मेरा नंबर मैंने मैसेज तो किया अभी, आप एक बार देख लो बेटा, फिर से मैं कर दे रहा हूं। तो मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या बेटा? मैं ऐसे तेज बोलता हूँ आ रही है सर। पर त्रिशा को सर आवाज नहीं आ ग्रुप रही। में आपका नंबर कहाँ पता? ये मैंने नंबर दे दिया बेटा आपको, देखिए ग्रुप नहीं अभी मैसेज में दिया है। और त्रिशा बेटा मेरी आवाज थोड़ी लाउड होती है, मैं खुद सोचता हूँ थोड़ा कम बोलूं, बट आई थिंक कि माई वॉइस इज लाउडर एनफ। सर आपकी आवाज ठीक है। हाँ लेकिन बेटा त्रिशा, यस सर। समटाइम कभी इश्यू हो तो आप एक बार मोबाइल का आवाज बढ़ा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, क्योंकि कभी कभी मोबाइल में गूगल मीट में हमारे पास आवाज का 2-3 ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन होता है जिसमें हम वॉल्यूम टेलीफोन कॉल के लिए रखते हैं, एक होता है वॉल्यूम स्पीकर ऑन रखते हैं, तो यहाँ स्पीकर ऑन रखना होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए एक मिनट बेटा। हाँ हो सकता है बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, कोई इशू नहीं है बेटा, फिर भी देखो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जब हमारे पास प्रॉब्लम होगा तभी तो हम बात करेंगे। तो आपके पास कोई भी इश्यू हो, आप कभी ऐसा मत समझना कि सर को हम वो कह रहे हैं, मतलब सर को बुरा लगेगा। सर को बुरा क्यों लगेगा भाई? सर तो अभी आके बोलते हैं कि वो क्लास टीचर है आपके, तो सर तो आपके गार्जियन जैसे हैं। तो यू कैन से वॉट एवर, जो भी दिक्कत आए आप जरूर मुझसे बात किया करो, ठीक है? नेवर नेवर हेजिटेट योरसेल्फ। देखिए तो एक और क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, ये किसका है अभी देख लेता हूं मैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। वेट, दिस इज, देखते हैं हम इस क्वेश्चन में इन्होंने कैसे बनाया है। हाँ बेटा रुक जाइए बेटा, एक मिनट, नाउ आई एम इन क्लास, वेट। देखिए चलिए सर लैपटॉप का वैसे नहीं भेज पाए सर, हम ही बनाए हैं बस। कोई बात नहीं है बेटा, ये जो है आपने, ये तो चेक्ड कॉपी है बेटा, ये नहीं दिखाना चाहिए, मतलब ये पहले से सर बनाया मेरा हुआ है वाला सबमिट किया मेरा ठीक है। बेटा, ये पहले से बना हुआ है। ये अलग बात है कि आपका ये चेक्ड कॉपी है, तो ये अच्छी बात है, बट वो कॉपी जो चेक्ड है वो मत दिखाइए, ठीक है? और सर मेरा वाला ठीक नहीं है। देखता हूँ और किनका है। मेरा नहीं है। और 800 से नंबर स्टार्ट है। अच्छा ये वाला नंबर दिख रहा है ना आपको? यस यस सर। ये वाला, यही मुझे लगता है सबसे पहले मैंने देखा था। मैंने भी अपना सेंड किया। जरूर जरूर। तो यहाँ पे भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यस, लेकिन डायरेक्ट लिखा हुआ है बेटा। और यहाँ आपने कारण लिखा है कि यहाँ पे जो है गिवन है, कॉमन है, दिस वेरी गुड। तो क्राइटेरिया मेंशन कहाँ है बेटा? मतलब कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया भाई साइड 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 कहाँ है? अगर आप बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी नहीं लिखते हो तो आप समझते हो कि आपका मिस्टेक हो रहा है, ये लिखना होगा, इसको लिखना जरूरी है। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हो गया, 9 नंबर हो गया। और मुझे अब कोई एक बच्चा ये भी जरा बता दे कि सर मुझे समझ नहीं आया, क्या आप मुझे नहीं समझाएंगे क्या? कोई ये भी बताए तो मैं ये समझाता हूँ, बोलिए बेटा। यस सर। चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हमने कल बात किया था पूरा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, आज फिर से उसको रिपीट करने वाला हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है आपका, और ये ट्रायंगल है पी क्यू आर,
ये जो ट्रायंगल है वो एक स्पेशल ट्रायंगल है जिसमें PQ और PR दोनों बराबर है। साथ में QR के बीचों बीच एक पॉइंट है जिसको हमने S नाम दिया है। और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ट्रायंगल PQS कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PRS के। तो हम हमेशा याद रखेंगे, बेटा ध्यान रखना यहाँ पे, हम हमेशा याद रखेंगे कि हर एक क्वेश्चन में जो भी कॉन्ग्रुएंसी से आएगा उसके दो चीज गिवन होते हैं। मतलब एक साइड ये गिवन है इसके और ये साइड ये गिवन है इसके, मतलब दो साइड गिवन है, एक चीज गिवन नहीं है। वो बीच में एंगल हो सकता है या बाद में साइड हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई एंगल या साइड ही होगा। तो हम वो तीसरा चीज ढूंढेंगे कि वो कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम मिला दें तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर ट्रायंगल हम PQS लिखते हैं और PRS लिखते हैं तो जो PS है ये दोनों में कॉमन साइड है, मतलब ये साइड दोनों ट्रायंगल के साथ जुड़ा हुआ है और ये दोनों में बराबर है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टी में, पहला हमने लिख दिया PQ बराबर है PR के, इसलिए बराबर है क्योंकि ये गिवन है। वॉइस वाज नॉट कमिंग। आपकी आवाज लेकिन पूरी क्लियर है बेटा। यस सर। मेरी आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? यस सर। बेटा आपका नेटवर्क इशू है बेटा, क्योंकि यस अगर आवाज, देखिए बहुत सारे बच्चे क्लास में हैं, अगर आवाज मेरी कम आएगी तो बाकी बच्चे भी मुझे कंप्लेन करेंगे कि सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। और नेटवर्क इशू के साथ होता है कि हमारी आवाज थोड़ी ब्रेक करके आती है, ठीक है। और यूजुअली क्या करता हूँ कि मैं आपके इस वीडियोस को रिकॉर्ड करके डाल भी देता हूँ मैं यूट्यूब पे, कि बच्चे अगर चाहें तो उसको चेक भी कर सके, समझ गए। तो इसलिए अगर बच्चे को लगता है देन ही कैन ऑल्सो यूज टू सी एंड देयर यू विल गेट ऑल द टॉट वीडियो। और आपके चैनल का नेम क्या है? वेट अ मिनट, ठीक है। आपके चैनल का नाम होम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स है ना? जी, so you can check it out there, and but if you are getting less voice or breaking voice you can say also कि sir there is problem, this is good, but नेटवर्क तो सही होना ही चाहिए बेटा। और ये हमारा कंट्रोल नहीं है, कभी कभी मेरे साइड से भी नेटवर्क अच्छा नहीं हो सकता है, it is true. Now come back to the point. See, so PQ and PR are given because these two are the equal sides. Similarly QS and RS is also given. Why? Because S is the midpoint. अच्छा, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा? बीचों बीच का पॉइंट। S is the midpoint of QR. और यहाँ पे तीसरा जो साइड है वो क्या है? PS is equal to PS. ये कह सकते हैं हम दैट इज द कॉमन साइड। ये क्या है हमारा? कॉमन साइड। तो अब हमारे तीन में तीन साइड मिल गए हैं तो हम लिख सकते हैं बाई, देखिए इसको अगर मैंने 1 लिखा, इसको 2 लिखा, इसको 3 लिखा, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3 ऑर्डर में, और बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। अब ये ट्रायंगल का नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए अगर आपने यहाँ PQ लिखा है तो इसके साथ PR ही लिखना होगा, तो यहाँ आपने PQ लिखा तो इधर लिखना होगा PR, और जो तीसरा साइड बच गया है PQ के बाद S, तो यहाँ PR के बाद S। ये दोनों ट्रायंगल अब हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब रिमेनिंग पार्ट भी आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है। क्लियर? यस सर। यस सर। तो आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से बनाना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद भी ऐसा नहीं है, अगर मान लिया जाए कोई क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, हम फिर से उसको अटेम्प्ट करेंगे, फिर से पूछेंगे, और सर तो है ही हमारे पास, उनसे और पूछेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं और चाहता हूं आपको देना,
ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आप मैसेज में दे सकते हो। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी। मुझे चैट बॉक्स में लिख करके दो। सर 6 का बी। 6 का बी आपको चैट बॉक्स में लिख के देना है। बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल द लेंथ द साइड इंडिकेटेड अलोंग बाय अप्लाइंग एसएसएस दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो दोनों जो फिगर है उसका नाम दे दीजिए सिंबॉलिकली, नाम लिखना है। तो मैं एक बार देख लेता हूं आप लोगों का क्या है बेटा। नन, क्यों नन हुआ बेटा? कारण बता दो। अगर वो एसएसएस नहीं है तो कारण बता दो मुझे, मैं सुनना चाहता नो हूं सर, कारण। दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्यों क्यों? AB and DC is not equal to कौन कौन? ए बी एंड DC. DC. DC is not AB and equal. DC. Yes, sir. मतलब Yes sir. मतलब ये जो ग्रीन वाला जो मैंने किया है हाईलाइट, इस वजह से। यस सर। बिल्कुल सही जवाब। Yes, sir. देखिए Yes, sir. देखिए यहाँ Yes, sir. इन दोनों ट्रायंगल को एक चीज और बताता हूं मैं, आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। देखिए बेटा, पहले क्या कीजिए, ये दोनों ट्रायंगल को हम सेपरेट कर लेते हैं। एक ट्रायंगल को यूं बना लिया हमने और दूसरे ट्रायंगल को हमने यूं बना लिया। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है ओवरलैपिंग। तो हमने देखा कि ये 6 का है, ये 6 का है, दो साइड तो मिल गया। ये भी 4 का है, ये भी 4 का है, दोनों कॉमन था, एक था सेम था, इसलिए ये भी मिल गया। लेकिन हमने देखा कि ये भी 4 का है और ये 3.5 का है, तो ये तो ओवरलैपिंग नहीं होने वाला ना, ये तो बदल गया ना, ये तो छोटा है ये बड़ा है, मतलब हूबहू एक जैसा तो नहीं है। तो हम नहीं कह सकते हैं ये दोनों फिगर को कॉन्ग्रुएंट। तो क्राइटेरिया को तो मारो गोली, कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है, तो कैसे कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे? तो आपने नन लिखा, दैट इज गुड, नो क्राइटेरिया विल बी जस्टिफाइड हियर। बट अब आपको बताना है नाम क्वेश्चन नंबर सी का, जल्दी से दीजिए प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर सी के लिए लिखिए बेटा, पेज नंबर 221 है। नाम लिखना है, मुझे नाम चाहिए। नहीं, नाम बेटा, ट्रायंगल का नाम, जैसे ए बी सी पी क्यू आर, इस तरह से नाम दीजिए बेटा। यस और वो नहीं देना है मुझे, ट्रायंगल का यहाँ नाम देना है, जैसे ए बी सी या बी डी सी या बी सी डी या सी बी डी या सी ए डी, जो भी नाम हो, आप वो दोनों ट्रायंगल का नाम देना है मुझे कि वो तो कौन सा ट्रायंगल है जिसको आप कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं। बोलिए बेटा। Sir, ABC congruent to ADC. Sir, ABC contained to triangle CDA by SS. बिल्कुल, ये वाला सही नाम था, ये सही था, पहले वाला नाम गलत दिया गया था। तो ये कौन बोला, कौन बच्ची बोली है ये? Sir, अभी Preeti. नाम बताइए बेटा फिर से, सॉरी सुना नहीं, बोलिए। Sir, Preeti. प्रीति। Yes sir. तो थैंक यू प्रीति आपके आंसर के लिए, आपका आंसर सही था। इसके पहले जो नाम आया था वो था ए बी सी। मतलब देखो, रास्ता हमने Yes, sir. सिलेक्शन क्या किया, पहले 4 चुना फिर 3 चुना। तो पहले 4 वाला नाम देना है, तो हमारा नाम शुरू होना चाहिए इससे, सी डी। नहीं तो जिस सिलेक्शन को, जिसको आप इधर से सिलेक्ट कर रहे हो ना बेटा, उसके बाद ये कर रहे हो, तो यहां से भी पहले 4 वाला सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद 3 वाला करना होगा। समझ गया? मतलब Yes, जिस sir. ऑर्डर में। तो अब मैं क्या करता हूं, इसका नाम थोड़ा चेंज करता हूं और आपसे पूछता हूं उस नाम के साथ बताना है। तो ये सारे बच्चे आंसर Okay, करेंगे। sir. पहला ट्रायंगल का नाम मैंने दिया DAC
अब आपको बताना है दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या होगा। जल्दी फटाफट टाइप करना है, बोलना नहीं है, लिख करके देना है। DAC ओके सर। का ये नाम क्या होगा, जल्दी बताना है। सॉरी सॉरी, DAC हमने यहां दिया है। हाँ बोलिए, नाम क्या होगा बेटा। बोलने वाला बात तो मैंने बोला कि अभी सुनने का मन नहीं है, तो मैं चाहता हूं आपका मैसेज देखूं, क्योंकि सारे बच्चों को मौका मिलना चाहिए, तो इसलिए मैं मैसेज में आता हूं। और मैंने बेटा दिया है DCA, तो मैंने खुद लिखा है। ओह माय गॉड, मैंने DCA लिखा है, BCA नहीं है, सर आंसर DAC। DCA होगा, देखिए सर जाके हाँ, देखो। मैं इस साइड का नाम दिया हूं बेटा, यहाँ का नाम मैंने दिया है। देखो मैंने क्या किया है, D के बाद C लिखा है, सॉरी D के बाद A लिखा है, और A के बाद C से गया हूं। मतलब पहले ये रास्ता मैंने चुना, फिर मैं ये गया, मतलब पहले मैं 3 वाला चुना और फिर मैं 5 वाले को चुना। तो दूसरे ट्रायंगल में ही पहले तुमको ये 3 को चुनना है और उसके बाद 5 को चुनना है। तो नाम क्या हो जाएगा? BCA होगा आपका, ठीक है ना? तो एक बार चेक कर लेता हूँ आप लोगों का नाम, किसका किसका क्या क्या आंसर आया है। एक बार लेट मी चेक। BCA वाले बच्चे को जरा रिकॉग्नाइज करूं मैं। ओह, एक बच्चा का गलत हो गया, ये पुनीत का गलत हो गया। क्यों गलत हुआ ना? क्योंकि एक आंसर को 5 बार दबा देने से वो आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। और बाकी लक्की भी सही है, लेकिन स्मॉल में ना लिखे। पुनीत एक बार लिखा था बेचारा, उसका रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, तो पुनीत सोचा मैं इतनी बार लिख देता हूँ, इतनी बार लिख देता हूँ कि सब जगह पुनीत प्रधान ही दिखे। तो पुनीत की सोच अच्छी है, क्योंकि भाई ऑनलाइन में पता नहीं चलता, सर कहीं ना देखे। हालांकि ये कोशिश उसके पहले नीलेश ने भी किया था 2 बार लिख के। पुनीत ने पहले भी किया है, नमन ने भी किया है, प्रीति भी पहले किया। तो पहले चेक करना होगा BCA सर सबसे पहले ऊपर देखे किसका ना, है। सबसे ऊपर कौन? देखता हूँ आयुष, आई एम गोइंग गोइंग गोइंग। पुनीत ने पहले भी लिखा है, समीर ने भी लिखा है BCA, और सोमनाथ ने कोशिश किया है दोनों समझा देने की। थैंक यू सोमनाथ। तुलिका ने भी लिखा है, वेरी गुड। लेकिन तुलिका ने एक बार लिखा, रिमार्केबल लिखा है, उसके बाद फिर वो नहीं बताई, क्योंकि डन मतलब डन। इट्स सर का ड्यूटी कि वो देखे ना देखे, वो सर समझे। हम तो लिख दिए। अमन ने भी सही किया है। पुनीत ने उसके पहले, ओ तुलिका ने इसके पहले भी लिखा है। चलिए भाई। उसके पहले भी कोई लिखा? सोमनाथ का पहले है, खुशी भी है, BCA। और गलती भी जा रहा है कुछ कुछ। ये थोड़ा सा DAC, नमन कंफ्यूजन में थे। ये एक ही ट्रायंगल को 2 तरीके से किस तरह से ये लिख रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, या क्या है दिक्कत टाइपिंग का, आई एम नॉट नोइंग। बट नमन की थोड़ी गलती तो थी। और यहाँ पे ABC CDA, ABC मेरा वाला नाम के साथ नहीं। खुशी ने पूरा कोशिश किया है, पूरा बता के लिख दिया है। टाइप में मास्टर खुशी, वेरी गुड 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 गुड। चलिए कोई बात नहीं है, दिस लुक्स वेरी गुड। तो BCA वाला पार्ट जो है ऊपर में खत्म होता है, लेकिन इसके बाद जो BCA का शुरू हुआ है ना, उसमें आशीष BAC गलत लिखा था, और सोमनाथ का सबसे पहले दिखता है। कि सोमनाथ मुझे दिख रहा है कि दैट इज BCA। तो सोमनाथ अनम्यूट करो अपने माइक को। सोमनाथ नहीं है मीटिंग में, कोई बात नहीं है। तो सोमनाथ को हम यहाँ पे हटा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तुलिका आती है। तुलिका वेरी गुड आंसर। सर सोमनाथ का माइक खराब है। ओहो यस यस यस। क्योंकि सोमनाथ ने पहले भी मुझे याद है, लास्ट डे भी उसने ऐसा कुछ बोला था। नहीं सोमनाथ, सिंपैथी तो है मेरा तुम्हारे साथ कि तुम्हारी माइक खराब है, लेकिन आंसर सही है सोमनाथ तुम्हारा। तो क्या माइक खराब होने से आंसर जगह पे नहीं पहुंचता है क्या? बिल्कुल नहीं। व्हाट्सएप, व्हाई व्हाट्सएप व्हेन द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट ऑन द। व्हाट्सएप नहीं करो बेटा, जब तक क्वेश्चन डिमांड नहीं करो तब तक क्वेश्चन का व्हाट्सएप नहीं करो, ठीक है? अच्छा स्क्रीनशॉट होगा, हो सकता है। ये किसका नंबर है तुलिका? मैं नंबर सेव कर लूंगा। अच्छा ये पहले वाला क्वेश्चन है, देखूं बहुत ज्यादा बड़ा लिखा हुआ है, सो आई हैव टू सी क्या है ये।
हैंड राइटिंग तो बहुत शानदार है, वेरी गुड। और कॉपी भी आप मैथ्स के लिए मोटा वाला फाइल यूज करती हैं, ये भी अच्छी बात है। सर ये मैंने भेजा है। नाम क्या है आपका? क्या है? प्रीति। अच्छा प्रीति, वेरी गुड। हैंड राइटिंग भी आपका बहुत अच्छा है, लिखावट भी बहुत अच्छा है, और आपने ये भी बहुत अच्छा किया है। अगर कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया को आप कॉन्ग्रुएंसी ये लिखने के पहले वाले लाइन में लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिखिए इसको, इसके पहले, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ठीक है ना? तो प्रीति, इट इज़ रियली वेरी गुड। गुड, सुपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन दूसरा सिलेक्ट करते हैं। तो इस पहले वाले एक्सरसाइज में हमने देखा कि ज्यादातर क्वेश्चन सब साइड 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 से लिए गए। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 3 साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू 3 corresponding sides of another triangle, what will you say about the 3 angle of both the triangle? Are they equal? ये मैसेज में लिखना है, टाइप में लिखना है, बड़ा बड़ा सेंटेंस करके आंसर लिख सकते हो आप लोग। तो आई एम जस्ट वेटिंग। ये पेज नंबर 211 222 का है, 10 नंबर क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को देख करके आपके आंसर को मैं देख रहा हूँ मैसेज में। थोड़ा अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आप मैसेज लिखिए तो मुझे दिख जाएगा कि भाई बच्चों ने क्या क्या लिखा है। देखिए कुछ करस्पॉन्डिंग वर्ड यूज होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग का मतलब किसको इसको समझ में आता है? कौन बोलेगा? मुझे जरा मीनिंग समझाइए, करस्पॉन्डिंग का मीनिंग बताइए। कौन बोलेगा करस्पॉन्डिंग का मीनिंग? सर इक्वल। ना 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 बेटा, करस्पॉन्डिंग का मीनिंग इक्वल नहीं होता। करस्पॉन्डिंग का मीनिंग जो बोलेगा, जो कॉन्फिडेंट है, वो कैमरा ऑन करके बोल सकता है डेयर, इट्स अ टास्क, इट्स अ डेयरिंग टास्क। नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बोल रहा हूं मैं, करस्पॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है। चलो जल्दी बताओ, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन बच्चा है जो एकदम दे आर रेडी टू फाइट, रेडी टू आंसर। बोलिए पुनीत। सर सिमिलर टू दैट। पुनीत पास हो गया भाई। पुनीत पास मतलब ये हुआ कि उसका मीनिंग बिल्कुल सही था, और डेयरिंग में नंबर 1 है पुनीत प्रधान। पुनीत तुम्हारा आंसर भी डेयरिंग वाला होता है, बहुत जबरदस्त आंसर करते हो, वेरी गुड। लेकिन करस्पॉन्डिंग का भी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आ पाया बेटा। मैं करस्पॉन्डिंग का एग्जैक्ट मीनिंग पूछ रहा हूँ। देखिए करस्पॉन्डिंग का मतलब ये हुआ, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए सर बोलिए अमन, तदनुसार बोलिए अमन। एक सर बार रिपीट, तदनुसार एक बार रिपीट करना है आपको। सर कैन आई? हाँ बोलिए बेटा, सर कैन आई? बोलिए बेटा बोलिए। The angles which occupy the same relative position at each intersection, where a straight line crosses two others. If two lines are parallel, the corresponding angles are equal. देखो रोनित ने तो पूरा लाइन लिख करके बता दिया है। तो ये रोनित, अच्छा लगा मुझे आपका आंसर, क्योंकि देखो ऑनलाइन में क्या होता है कि वी ऑल हैव सर तदनुसार हाँ बोलिए। करस्पॉन्डिंग नहीं नहीं, ये वर्ड अच्छा लगा। कौन बोला तदनुसार? व्हाट्स द नेम प्लीज, नेम, नाम बताओ बेटा। सर प्रीति। प्रीति, बहुत अच्छा वर्ड है तदनुसार, लेकिन मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ। चलो मैं भी थोड़ा बोलूं, मेरे को मौका दो तो मैं बोलता हूँ, टाइम कम है, जल्दी मौका दो। यस सर। चलो बेटा, Yes. बोलिए। यहाँ देखो, देखो होता क्या है, जैसे मान लिया जाए कि एक मेरा इस तरह का एक फील्ड है, ठीक है, मान लो ये एक रूम है,
और ये रूम में यहाँ पे दरवाजा है, यहाँ पे एक खिड़की है, यहाँ पे स्विच बोर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे बालकनी जाने का रास्ता है। मान लिया जाए हमने ऐसा किया। ये मेरा जो फ्लैट है ना वो आपके फ्लैट के जस्ट ऊपर है, और आपका और मेरा फ्लैट एकदम एक जैसा ही है। तो बताओ बेटा, मेरा जहाँ पे स्विच है आपका भी स्विच तो वही होगा ना, अगर एक अपार्टमेंट में फ्लैट है और बिल्कुल सेम टू सेम सब कुछ है तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग पार्ट। अच्छा, मेरे बालकनी जाने का रास्ता अगर ये है तो आपके यहाँ भी तो यही होगा ना। मेरा एंट्री का दरवाजा अगर डोर ये है तो आपके यहाँ भी तो यही होगा ना। मेरा अगर खिड़की विंडो ये है तो आपके यहाँ तो यही होगा ना। तो मतलब करस्पॉन्डिंग मतलब हो गया कि मेरे लेफ्ट हैंड का थंब, तो आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? लेफ्ट हैंड का थंब। मेरा अगर राइट हैंड का लिटिल फिंगर है तो आपके हैंड का भी राइट हैंड का लिटिल फिंगर। मेरा अगर लेफ्ट आई है तो आपका भी लेफ्ट आई, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट यही हुआ। रौनक ने जो समझाना चाहा बोल करके वो यही बताया कि अगर करस्पॉन्डिंग का मतलब हुआ, और प्रीति ने तो क्या बोला, तदनुसार, मतलब उसके जैसा ही। थैंक यू प्रीति फॉर दिस हिंदी वेरी गुड beautiful word, tadnusar. I will remember it, and whenever this word is used by me I will of course say the same word. Okay, thank you. Now see, तो corresponding का मतलब क्या होता है बेटा? हमारे पास जो है और आपके पास है, अगर वो सेम टू सेम है, जैसे मेरा मोबाइल और आपका मोबाइल अगर सेम टू सेम एकदम डिट्टो वही है, तो हम बोलेंगे ना कि आपका जो बटन है पावर बटन वो वहां होगा, आपका वॉल्यूम बटन वहां होगा और फिंगर सेंसर वहां होगा। हो सकता है? तो करस्पॉन्डिंग का मतलब मुझे लगता है कि क्लियर हुआ, नहीं हुआ? सर हो गया। अच्छा, किस किस बच्चों को ये करस्पॉन्डिंग वाला चीज में दिक्कत हो रहा था इसके पहले? थैंक यू आसिफ, थैंक यू नमन। अगर दिक्कत था और अभी ठीक हुआ तो आप सबको थैंक यू, और जिसका पहले से ठीक था उसको इसलिए थैंक यू कि वो चुपचाप सुनते रहे, अच्छे से सुने, समझे और उसको रिकॉल किए। क्योंकि देखो बेटा, पढ़ाई के साथ साथ अगर हम उस चीज को ज्यादा देर तक पढ़ते हैं तो वो हमें ज्यादा और अच्छा आइडिया देता है, हमारा आईक्यू लेवल बढ़ता है, हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चन को इजी बनाने में आसान करता है। तो मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा मजा आ रहा है आप लोग को पढ़ाने में कि आपको ज्यादा मजा आ रहा है पढ़ने में? सर हम लोग को ज्यादा मजा। चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू। एंड आप सबको गॉड ब्लेस, हमेशा हैप्पी रहो, जम के स्वस्थ रहो, खाओ पियो, एंजॉय करो घर में। क्लास खत्म हो गया? क्यों नहीं, 2 मिनट तो होने वाला। टाइम कभी कभी हो जाता है। मैं तो अभी लगातार, दिस इज द 4th पीरियड ऑफ माइन, एंड the last, if the last period is going like this, then I don't think कि पहले पीरियड को क्या बोलूं, लास्ट पीरियड में इतना मजा आ रहा है मुझे तो जरूर। यस सर, यू आर राइट। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है बेटा, आप लोग अच्छे से पढ़ो। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट आज के लिए कि आप लोग डेली मैथ्स का मिनिमम 15 क्वेश्चन से कम नहीं बनाओ, ये जरूर बनाना चाहिए। और अपने पेरेंट्स की पूरी बात मानो, ठीक है, उनकी बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करो, ठीक है। और इस मैसेज के बाद अब नेक्स्ट क्लास आपका किनका होने वाला है? हु विल बी असाइंड टू टेक योर सेकंड क्लास? टेल मी। अपेक्षा मैम। ओके